Hello students, today we are going to discuss the illustration of the fourth chapter as we have cleared all the theoretical part of this chapter. Okay, so on Tuesday you have to give a test of the theory of fourth chapter. Okay, let me start the illustration. First illustration is that 4.1 illustration is that Galileo in his book Two New Sciences stated that for elevation which exceed or fall short of the 45 degree by an equal amount, then the ranges should be equal. Then prove this statement. Okay, यानी कि हमको यहाँ पे बोला क्या गया है अंदर कि you have to take the two different angles. Here you have the 45 degree and you have to two different angles which can make the difference with the 45 degree as a equal. Okay, so for example, if we are taking the theta as a difference, then the one angle will be greater than the 45 and one angle will be lesser than 45, and that angle will be become 45 minus theta and 45 plus theta. Understood or not? So for elevation which exceed otherwise the fall short of the 45 degree by the equal amount. So here equal amount we are considering theta, and fall means minus and exceed means plus. So 45 plus theta and 45 minus theta. So if you are thrown your object at the angle of 45 minus theta, otherwise 45 plus theta, then whatever the range, okay, whatever the range you are getting, that are equal, that we have to prove. Okay, so first of all construct such kind of figure and do the assumption that suppose in first case you are getting R1 range and in another case you are getting the R2 ranges of the projectile particle, which are projectile. First degree is what? 45 degree minus theta degree, and second one is the what? 45 degree plus theta. Yes or no? Now for projectile motion, the equation of range is equal to what? V0 sin theta 0 डिवाइड बाई जी. ओके, हमको क्या याद रखना था? वो टी वाला टीएम वाला इक्वेशन था, वो याद रखना था. पर रेंज में क्या करना था? V0 का स्क्वायर करना था, साइन को 2 थीटा देना था और जी को अकेला रखना था. बराबर, तो फॉर्मूला बन गई हमारी रेंज की. नाउ हियर वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट केस एज अ एंगल 45 माइनस थीटा डिग्री. Okay, so in this equation we are replacing theta 0 by the 45 minus theta. Yes or no? If we are replacing theta 0 by 45 minus theta, then the equation would become V0 square sin 2 and theta 0 is replaced by 45 minus theta 0. Okay, and divide by g. Now multiply by 2 inside the bracket, so we are getting 90 degree minus 2 theta. Yes or no? Now in 10th standard you have studied that sin 90 minus theta, otherwise the plus theta equal to the what? Cos theta. Yes or no? तो यहाँ पे क्या है? आपका 90 माइनस थीटा है, पर यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे आपका आंसर साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा. और जो एंगल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? और V0 और G तो जो है वही के वही रहेंगे अंदर. तो आपको फर्स्ट केस के लिए R1 का इक्वेशन मिल गया कि ना मिल गया अंदर? बराबर. अब दूसरे केस के लिए हम अगेन इक्वेशन को यूज करेंगे, तो वहां पे क्या लिखेंगे? 45 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे अंदर. Yes or no? बराबर. अगेन if you are multiplying 2 inside the bracket, then you are getting 90 plus 2 theta. Okay, now 90 plus theta means second quadrant. Okay, and you are converting the sign, so sign will convert it into the cos as the angle is 90 plus or minus. Yes or no? But here the sign in the second quadrant will be what? Positive. आप देख सकते हो यहाँ पे y एक्सिस क्या second quadrant में भी पॉजिटिव वाली है ना अंदर. बराबर. तो साइन का क्या लिखेंगे? भाई cos 2 थीटा तो लिखेंगे पर प्लस में ही रखेंगे अंदर, क्योंकि साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है भाई? प्लस होती है अंदर. बराबर. तो फिर से आपको वही इक्वेशन जो मिला जो फर्स्ट वाले में मिला था, तो ये दोनों को कंपेयर करके आप बोल सकते हो कि यस R1 इक्वल टू R2. बराबर. और फिर लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव. हमने क्या किया? स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया कि ना कर दिया अंदर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 4.8 इलस्ट्रेशन दिया है. वो क्या बोल रहा है? अ हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड. यानी कि एक बंदा है 490 मीटर हाइट पे क्या है भाई? खड़ा है अंदर. एंड थ्रोज द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड. और वो क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, बराबर, यहाँ की स्टोन है, उसको वो थ्रो कर रहा है, पर थ्रो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन वो क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टली रख रहा है. यानी कि आपका जो स्टोन है उसका इनिशियल वेलोसिटी का खाली एक्स कंपोनेंट ही है, वो कितना है? 15 मीटर पर सेकंड है, जबकि वाई कंपोनेंट क्या होगा भाई? 0 होगा. वाई? बिकॉज ही थ्रो द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली. Okay, now neglect the air resistance and we have to find the time taken by the stone to reach the ground and speed with which it hits the ground. Means we have to find out the time
एज वेल एज द स्पीड, बराबर, वेन एवर इट इज हिटिंग, बराबर, जब भी वो हिट होगा सरफेस से, बराबर। तो ये दो चीज हमको फाइंड करनी है अंदर। तो उसके लिए थोड़ा सा हम अजम्पशन कर लेते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको अजम्पशन क्या करना है कि जहां से भी आपका मोशन का स्टार्ट होता है उसको क्या ले लो भाई, ओरिजिन कंडीशन ले लो अंदर। So the origin is chosen at the edge of the cliff, बराबर, and at t equal to 0 time we are throwing the stone, यानी कि वो बंदा है वो t equal to 0 टाइम पे क्या कर रहा है भाई, स्टोन को थ्रो कर रहा है अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट, बराबर। अब यहाँ पे आप x का और y का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखो अंदर, कोई भी टाइम के लिए अंदर, बराबर। तो हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा भाई, v0x इंटू टी होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। और y का इक्वेशन क्या होगा आपका अंदर, v0yt माइनस 1/2 gt स्क्वायर होगा अंदर। यस और नो, बराबर। ये दो इक्वेशन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किए थे, याद आ रहे हैं कुछ आपको? ना याद आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाली थियरी फिर से देखो, उसका वीडियो रिवाइज करो, तभी जाके आपके पास ये सारे ऑप्शंस क्या होंगे, अच्छे से क्लियर होंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। पर हमारे पास यहाँ पे जो भी डेटा है वो किसका है, वाई का डेटा है, बराबर। हमारे पास टाइम तो अननोन है, तो हम क्या करेंगे, वाई वाले डेटा का यूज करके टाइम फाइंड करने का ट्राई करें। तो चलो वाई ऑफ टी, तो सीधी सी बात है वो हॉरिजॉन्टली अगर अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है यहाँ से अंदर, बराबर, तो हॉरिजॉन्टली तो कुछ इस तरह से जाएगा। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का शेप कुछ ऐसा है, तो उसको आधा कर दो तो आधा शेप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे वो वर्टिकली में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ग्राउंड तक 490 मीटर जितनी हाइट है उतना ही ट्रैवल करेगा, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 490 माइनस लिखेंगे, इक्वल टू, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई हॉरिजॉन्टल का खाली एक्स कंपोनेंट ही वेलोसिटी का है, वाई तो क्या है, जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को खाली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया। यानी कि यहाँ पे हम जो v0yt लिखेंगे वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर। v0y की वैल्यू जीरो है तो फिर उसके साथ जो भी हो उसका आंसर जीरो रहेगा। फिर माइनस 1/2 g टी स्क्वायर। अब ये जी कैसा है, क्योंकि वर्टिकल में कौन सा एक्सेलरेशन लगता है भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है कि नहीं लगता है अंदर, और वो ऑलवेज क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसकी भी साइन नेगेटिव आएगी अंदर। अब ये जीरो है तो लिखो कि ना लिखो कोई मतलब ही नहीं है अंदर, बराबर। तो आपको इक्वेशन क्या मिला भाई, माइनस 490 इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर मिला अंदर। अब जी की वैल्यू पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो, जी से डिवाइड बाय करो तो आपको टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, फिर स्क्वायर रूट ले लो तो आपको टी की भी वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो आपको टी की वैल्यू कितनी मिली भाई, 10 सेकंड मिल गई अंदर। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, कब, वो जब ग्राउंड पे हिट हो तब। अब देखो जब इनिशियल में था तब उसके पास खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, बराबर, पर जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसके पास हॉरिजॉन्टल तो है ही कांस्टेंट वाली, पर साथ में वर्टिकल वाली भी अब वेलोसिटी लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे कोई जब भी वो टी टाइम पे जमीन पे स्ट्राइक होता है अंदर, तो उसका वीएक्स ऑफ टी यानी कि एक्स कंपाउंड वो ही रहेगा जो उसका इनिशियल वाला था, क्या था भाई, 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर बार कांस्टेंट रहती। और वर्टिकल को फाइंड करना हो अंदर तो उसका इक्वेशन क्या होगा हमारा अंदर, बराबर, v0 प्लस 80 वाला इक्वेशन यूज करते थे, पर यहाँ पे हम अपडेट करके क्या करेंगे, y कंपोनेंट की बात करें इसलिए v0y माइनस gt लिखेंगे। अब t पता है, g पता है, v0y तो जीरो ही है, तो आपको क्या मिलेगा भाई, vy भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर, बराबर। अब देखो कि यहाँ पे टी टाइम पे यानी कि 10 सेकंड पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो जमीन पे स्ट्राइक हो रहा है, उस टाइम पे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मेरे पास प्रेजेंट है। तो टोटल वेलोसिटी मैं कैसे फाइंड करूंगा भाई, v इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट मेरे पास अवेलेबल है, स्क्वायर करो, एडिशन करो, स्क्वायर रूट करो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आंसर आपको क्या मिलेगा भाई, 99 मीटर पर सेकंड मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है। एक चीज हर बार याद रखोगे, आपको क्वेश्चन फिजिक्स में हर बार किस फॉर्म में दिया होता है, वर्बल फॉर्म में। चलो तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू रखोगे अंदर तो आपका आंसर मिल जाएगा अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया गया है अंदर, वर्बल फॉर्म में दिया गया है। तो सीधी सी बात है आपको आंसर भी किस फॉर्मेट में देना चाहिए, वर्बल फॉर्म में। इसलिए आप लास्ट में क्या करो भाई, एक वर्बल स्टेटमेंट में उसका आंसर भी लिख दो कि हेंस द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जर्नी इज 10 सेकंड एंड वेन एवर इट हिट द ग्राउंड एट द टाइम इट स्पीड विल बी वॉट 99 मीटर पर सेकंड अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। Now next question is very easy question. If you know the formula of projectile motion, okay. Now what is the question?
A cricket ball is thrown at the speed of 28 मीटर पर सेकंड in the direction of 30 डिग्री above the horizon। यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड दे दी गई है और इनिशियल throwing angle that is theta 0 that is also given as a 30 degree। Now we have to calculate the maximum height। चलो maximum height का इक्वेशन क्या था, मैंने बोला था एक ही इक्वेशन याद रखने का TM वाला, तो लिख दो बराबर। और h के लिए क्या करते ऊपर दोनों को स्क्वायर करते थे और डिवाइड बाय क्या करते थे 2g करते थे अंदर, यस और नो, दोनों को स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई मिलता था। अब देखो इनिशियल स्पीड अवेलेबल है, यस थीटा 0 30 है तो साइन 30 फाइंड कर सकते हैं हम, यस और नो। 2 और g सबकी वैल्यू हमको पता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करना 11 स्टैंडर्ड वालों का आएगा कि नहीं आएगा अंदर, यस और नो। तो आपको फाइनली h की हाइट क्या मिलेगी भाई 10 मीटर मिल गई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि जहां से थ्रो किया वहां पे वापस आने का टाइम, यानी कि यहाँ पे टोटल टाइम क्या हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ अंदर। मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम नहीं पूछा है, वो रिटर्न कब आता है बराबर। तो यहाँ से फेंका तो यहाँ पे आएगा, तो उसको तो हम टीएफ बोलते थे ना, तो टीएफ की फॉर्मूला क्या थी भाई, वही v0 साइन थीटा 0, तो लिख दो डिवाइड बाय जी मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, याद आ रहा है कुछ बराबर। v0 पता है, साइन थीटा 0 भी पता है, जी भी पता है, वैल्यू रखो मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया कि ना, आ गया अंदर, हाँ के ना। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि थ्रोवर्स ने जब यहाँ से बॉल फेंका और फिर जहाँ पे वो पड़ा तो यहाँ से थ्रोवर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि अल्टीमेटली हुई क्या भाई, रेंज ही की है ना अंदर बराबर। तो यहाँ पे क्या सीधी तरह से आपको नहीं पूछा है कि क्या फाइंड करना है, आपको थोड़ा वर्बली स्टेटमेंट दे दे के पूछा है कि भाई आपको क्या फाइंड करना है अंदर, समझ में आ रहा है। तो इसकी फॉर्मूला रेंज की क्या थी, फिर से हम वही इक्वेशन लिखेंगे, v0 sin थीटा 0 डिवाइड बाई g बराबर। उसमें था क्या कि इसका स्क्वायर हुआ था, इसका 2 हुआ था और g बेचारा अकेला रह गया था अंदर बराबर। तो इसकी फॉर्मूला बन गई, अगेन वही की वही प्रोसीजर करनी है। v0 आपको पता है, थीटा 0 भी आपको पता है, पर याद रखना यहाँ पे 2 थीटा 0 है, यानी कि आपका साइन 30 था, मल्टीप्लाई बाय 2 होकर क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है। जबकि ऊपर वाले दो क्वेश्चन में आपको क्या करना था, 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना था अंदर बराबर। तो सारा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करो तो आपको रेंज का भी वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर, है ना, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लास्ट वाला जो है उस पर हम आए अभी, तो वो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है अंदर कि एन इंसेक्ट trapped in a circular groove of radius 12 centimeter. So here radius is given as 12 centimeter equal to 0.12 meter along the groove steadily and complete 7 revolution in 100 seconds. So number of revolution is 7, okay, and for that total time is required equal to 100 seconds. So what is the angular speed and linear speed of the motion? तो यहाँ पे हमको दो चीज फाइंड करनी है, पहले भाई ओमेगा फाइंड करना है यानी कि क्वेश्चन मार्क, और लीनियर स्पीड यानी कि v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो ओमेगा का सिंपल फॉर्मूला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय हम क्या लिखते हैं भाई, टाइम लिखते हैं अंदर, यस और नो बराबर। अब यहाँ पे है क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने रिवोल्यूशन करे भाई 7, और एक रिवोल्यूशन इक्वल टू डिग्री हम क्या लेते हैं भाई 2 लेते हैं कि नहीं लेते हैं अंदर, यस और नो। और उसके लिए उसको टाइम क्या लगता है भाई 100, तो डिवाइड बाय टाइम आ गया अंदर। अब पाई की वैल्यू दो लेते हैं 3.14 और 22/7 बराबर। अब यहाँ पे 7 है तो 22/7 लेना ही ज्यादा अच्छा है ना अंदर, समझ में आ रहा है। तो सबको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करो अंदर, तो 7 कट हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे 22 2 करोगे तो 44 आएगा, डिवाइड बाय 100 है तो आपको आंसर क्या मिलेगा भाई 0.44 मिलेगा। तो ओमेगा का आंसर रेडियन पर सेकंड में मिल गया 0.44 बराबर। अब आपको ओमेगा पता है तो v फाइंड करना तो बहुत ही आसान है हमारे लिए, याद करो फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू अपना ओमेगा आर ओमेगा बराबर। तो आर ओमेगा, आर तो रेडियस आपको दी गई है अंदर, मल्टीप्लाई करो 0.44 से तो आपको वो आंसर भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर बराबर। अब दूसरा उसमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे वो जो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में अंदर, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वेक्टर तो है ही, पर क्या वो कांस्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे देखो एक तो सर्कुलर मोशन हो रहा है अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है यूनिफॉर्मली तो होगा क्या कि भाई उसकी हर बार डायरेक्शन के बारे में बात करें बराबर, तो डायरेक्शन क्या होती है, हर बार उसके जो भी पॉइंट है उसके टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हो कि हर बार टेंजेंट की डायरेक्शन क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है अंदर। तो
तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भले चेंज नहीं होती है पर डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है अंदर, बराबर। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट वेक्टर कंसीडर करेंगे नहीं अंदर, बराबर। तो लिखा ही है कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन चेंजेस कंटिन्यूअसली हियर, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन की भी बदलेगी अंदर। Hence, acceleration vector is not a constant. However, its magnitude remain constant. पर यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदल रही है यहाँ पे अंदर, बराबर। और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, बराबर। तो आप v²/r पे से भी फाइंड कर सकते हो, या तो फिर ये फॉर्मूला भी यूज करना चाहे तो कर, दोनों फॉर्मूला से आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। हमने एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन यूज किया था, अब यही इक्वेशन में v = r ओमेगा रख दो, तो r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r होगा, तो एक r कट हो गया, तो r ओमेगा स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो आप दोनों फॉर्मूला में से जो भी फॉर्मूला यूज करोगे आपको आंसर तो वही का वही मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया भाई, इलस्ट्रेशन जो है हमारे जो भी वो हमने क्या किए, क्लियर किए। और याद रखना कल हमारा क्या है, टेस्ट है, तो टेस्ट में आपको थियोरी के अच्छे से प्रिपरेशन करके खुद सेल्फ टेस्ट ईमानदारी से देना है अंदर। ओके, थैंक यू।